Hello everyone, very good morning, very warm welcome once again to the YouTube session brought to you by PW. This lecture will talk about simple basic level questions from the unit discrete mathematics, and specifically I am discussing Boolean algebra in today's session, which is very important for all competitive level examinations of computer science. Hearty welcome to all of you, but before we start off with any of the discussion further, please confirm my voice is audible and the screen is clearly visible. Welcome everyone, kindly settle, and because you have to solve questions, so please take your paper and pen out so that you all can solve and quickly calculate the answer, because we are moving with the poll. As always, we will be discussing the questions with the help of poll, so you'll be given chance to participate and reply for the answers. All clear? Chaliye theek hai, very nice. Let's proceed. Last session was also about the question discussion, but that was related to the basic level question discrete mathematics के mixed questions थे, right? That is also important for net and set examination, because we know that we are getting questions from this unit discrete mathematics in all level of examinations. So it does not matter whether you're preparing for national level or you're preparing for any state level examination, you will definitely get questions from discrete mathematics, है ना? And today specifically I'm discussing basic level questions. Trust me, I've not added complicated ones. I have added the simple questions. मैंने बहुत simple add करा है ताकि आप लोग जो है रिप्लाई कर सको, बिकॉज हमने पेपर में भी देखा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं हमेशा, इसमें से सिंपल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, है ना? तो इस वजह से मैंने आज सिंपल क्वेश्चंस ही रखे हैं. चलिए, लेट्स प्रोसीड. So here we go to the first question. Which of the following statement related to Boolean algebra is a false statement? गलत statement कौन सी है? Again मैं poll start करूंगी, तो आपने एक एक जो है वैल्यू को सॉल्व करके फिर पोल में रिप्लाई करना है. ठीक है, चलिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ. So for this question I am giving you timer for 60 seconds. Simply open the bracket and apply the rules. अच्छा, जिसको इनमें सॉल्व करने में जो है प्रॉब्लम होती है, वो बच्चे ट्रूथ टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं. Quickly reply. Everyone, quickly participate in the chat. चलिए, poll up, and I can see here students have replied option number B. Let's calculate. Let's calculate. So you can open up the bracket definitely. यहाँ पे bracket आप open करेंगे, x dot x complement plus x dot 1 which is equal to, question आपको false पूछ रहा था. So what is x dot x complement? सी वैसे तो आपको ये ओरल लर्न होना चाहिए, बट अगर नहीं आता और कहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है तो आप ट्रूथ टेबल को बना के भी उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. जैसे ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है ये भी बता रही हूँ. जैसे x की वैल्यू आपने 0 1 ली है, व्हाट इज x कॉम्प्लीमेंट? दैट वुड बी 1 0. अब इन दोनों वैल्यूज को आपको डॉट करना था, है ना? डॉट का मतलब क्या होता है? जब दोनों वंस होंगे तो आंसर 1 आएगा, बट वी डू नॉट हैव दैट, मींस दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस 0, है ना? सो दिस इज 0 प्लस, एंड व्हाट इज x डॉट
1, x के साथ किसी को भी, x के साथ आप 1 ले रहे हो, है ना, दोनों को अगर डॉट करोगे तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस आंसर 0 1 which is x only. So that is, this is going to produce x, and once you or x with anything, that is, this is going to produce answer x which is given. So ये तो बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट वाला बिल्कुल ठीक है ना. सेकंड पे मूव ऑन करेंगे, सेकंड को भी ऐसे ओपन करोगे, x x कॉम्प्लीमेंट plus x x complement y. So what is x x complement? This we have already calculated. This is going to produce answer 0, right? Again here, this is going to produce answer 0, 0 dot y, which would obviously be 0, है ना. So यहाँ पर आंसर 0 होना चाहिए था, but it's given here 1. That means this is incorrect statement. Otherwise, what is x plus x complement? You can see here, plus का value 1 आती है, ठीक है. And what is 1 plus x, which I have applicable here also, एक जगह पर हमने किया था, नहीं तो एनी हाउ व्हाट इज 1 और x दैट इज इक्वल टू 1. सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है. डेफिनेटली राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 100% एक्यूरेसी for this question. Very good. And we have seen such type of questions बच्चे. मैं इसका एक क्वेश्चन आपको भी और बताती हूँ, है ना. पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. जो जून 2024 का नेट एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था, वहां पे भी बहुत सिंपल बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा था. I'll discuss that also very quickly, okay? But first of all, let's solve this. So you have to simplify the given boolean expression. This is expression given. You have to solve it. चलिए स्टार्ट कर दीजिए फटाफट से. सो ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है एंड इसको आपको सॉल्व करके बताना है व्हाट वी कैन डू इन दिस केस. सो यू कैन अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो मैं एक हिंट दे रही हूँ. आप सबसे पहले इनिशियली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो. टाइम स्टार्ट्स नाउ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन द सेंस यू कैन टेक ए कॉमन. मैं हिंट दे रही हूं बच्चे, आई एम गिविंग यू हिंट सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली. सो फ्रॉम दिस यू कैन टेक ए एज कॉमन एंड यू विल गेट d plus d कॉम्प्लीमेंट इतने पोर्शन से, विच इज इक्वल टू वैल्यू 1. yes, which is equal to value 1. so a को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पर आपका सिर्फ आंसर रह जाएगा a, है ना. यहाँ पर सिर्फ आपका आंसर रह जाएगा a. अब आई थिंक बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना. पोल स्टॉप. आई कैन सी फ्यू स्टूडेंट्स हैव रिप्लाइड एज ऑप्शन नंबर a. लेट्स सी इज a द राइट आंसर. यू विल गेट a हियर, है ना. इतने पोर्शन का आंसर a आ गया. अब मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ. नाउ दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन विच आई हैव a plus c. This needs to be multiplied with this value which I have calculated already, plus AC plus C. I can open this bracket, so this would be AA plus AC. But it's perfectly fine to write it twice. A dot A, that means A, है ना. So यहाँ पर मैं इसको one time लिखूंगी because it's same. So A plus AC plus AC plus C. This is the equation produced now. Now what is the value for AC plus AC? It's perfectly fine to write AC once. AC plus AC is same as AC, 1 AC, right? So AC plus C, correct? Now we can take common out of it. We can take A as common. So inside bracket we'll get answer 1 plus C, correct? What is 1 or C? That is equal to value 1, right? So यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया A plus C, which is the correct equation given in option number 1. A is absolutely the right answer. 100% एक्यूरेसी. बहुत बढ़िया, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन थी वैसे. इट्स जस्ट कि पहला पॉइंट कई बार समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है. सो दीज रूल्स वी हैव अप्लाइड टू कैलकुलेट द आंसर. देयर वाज वन क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन जून नेट एग्जामिनेशन, जो कि पेपर कैंसिल हो गया था ना. तो वैसा ही बुलियन का एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें डुअल निकालने को बोला था, अगर आपको याद हो तो मैं वो क्वेश्चन अब पहले लेकर आ रही हूँ जिससे कि हम लोग देख सकें कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली केम. सो यू हैव टू मैच लिस्ट नंबर 1 and also list number 2. So what was the question in list number 1? It was given the Boolean expression. ठीक है, Boolean expression given है list number 1 में.
एंड लिस्ट नंबर 2 में हमें मेंशन था डुअल. नाउ व्हाट इज डुअल बच्चे? दैट आई विल टेल यू. डुअल ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन. ठीक ठीक. एंड वैल्यूज क्या है? वैल्यूज में ए ऑप्शन इज गिवन x डॉट y प्लस 0. बी ऑप्शन x कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 प्लस y कॉम्प्लीमेंट प्लस z. C part x complement dot y complement plus 0 and D part x dot 1 plus y plus z complement. Right? And the dual is first part x complement plus 0 dot y complement dot z and second x plus y dot 1. Third is x complement plus y complement dot 1 and fourth is x plus 0 dot y dot z complement. So this was the question, and let me tell you the options given in the question. Options ye aaye the. Options were, first option says A will match with 3, B will match with 4, C will match with 2 and D will match with 1. Second option, A will match with 3, B will match with 4, C will match with 1, D will match with 2. Third, A will match with 2, B will match with 1, C will match with 3 and D will match with 4. And fourth and last option, A will match with 2, B will match with 1, C will match with 4 and D will match with 1, 2, 3. So these are the 4 options which were given in the question. And let me tell you one interesting thing before starting off the poll for this question. Yes, so वन पॉइंट आई करवाया था क्रैश कोर्स में. बिल्कुल करेक्ट. यस वंदिता. एक पॉइंट में बच्चे यहाँ पे प्लीज बताऊंगी. स्टूडेंट्स हु डू नॉट नो हाउ टू फाइंड आउट डुअल, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. डुअल कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल सा रूल है. सिंपल सा रूल ये है कि यू जस्ट हैव टू चेंज. what you have to change? You have to change 1 to 0. You have to change 0 to 1. You have to change plus to dot, and you have to change dot to plus. That's it. These are the 4 things which you have to change. That's it. Rest of the variables and the complements are unchanged. ये important point है note करने वाला. कई बारी हम लोग क्या करते हैं, x को x कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं या x कॉम्प्लीमेंट को x कर देते हैं. नो, वो नहीं करना. दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट वेरिएबल्स and their complements, variables and their complements will be unchanged. उसके अंदर आप कोई भी चेंज कभी भी नहीं करते हो. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द टाइमर फॉर दिस क्वेश्चन एंड सी the response. Time starts now. Okay.
हाँ जी, yes, right answer for the question. Okay, I've just seen the replies. ओहो, इतनी शायरी किसने लिखी? मोनिका. ओके, चलिए. ऑल राइट, लेट्स प्रोसीड. क्या आंसर है इसका भाई? इसमें हमें डुअल निकालना है. सो हाउ डू वी कैलकुलेट डुअल? सो डुअल इज x विल बी रिमेन x. मैंने अभी पीछे बताया वेरिएबल्स नहीं बदलते है ना, डॉट बदल जाएगा. तो इसका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई डॉट वन, राइट? Then x complement, no change in variables and complements, dot will change to plus, 1 will change to 0, plus will change to dot. Okay, y complement, plus will change to dot, correct? Then here you will get x complement, dot will change to plus, y complement dot 1, and here x dot will change to plus, plus 0 dot y dot z complement. सो ये है. अब आप इसको मैच कर लो, किसके साथ मैच हो रहा है? ये हो गया x प्लस वाई डॉट वन, सो ये इधर आ रहा है x कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 डॉट वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट. ये कहाँ है? y प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, ये रहा. d मैच कर रहा है 4 से, c मैच कर रहा है, सॉरी बी मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 1 से, ठीक है, एंड सी मैच कर रहा है 3 से. सो हेयर सी विल बी 3, डी विल बी 4. आई थिंक दिस इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है ना? थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है. सो आप देखो कितना आई थिंक सिंपल क्वेश्चन पूछा है, येट they have asked. अच्छा, what I have seen in examination trend this time or from past few examinations जो हुए हैं, है ना, तो ये क्या कर रहे हैं? they are going to be more diverse, right? Rather than asking just a question from one topic, they are asking questions to arrange, or they are asking questions related to match the following, where you have to match. And obviously in this they have asked 4 questions. आप ऐसे समझ सकते हो, है ना? तो एक से ज्यादा चीजें यहाँ पे पूछी जा रही है, या फिर दे आर आस्किंग यू टू सॉर्ट इट आउट, है ना, अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू अरेंज एज अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स. सो इसमें इसका टारगेट ये है टू मेक द क्वेश्चन पेपर मोर डाइवर्स, बिकॉज देखिए सिलेबस तो उतना ही है ना, उसके अंदर कैसे चेंजेस कर सकते हैं? बिकॉज आई मीन सिंस अ लॉन्ग टाइम इट्स बीइंग मोनोटोनस ना, एक जैसा पूछे जाने से, तो दे हैव ब्रेक दैट मोनोटोनस टाइप ऑफ पैटर्न and they are making the question paper more diverse. and I personally believe कि ये attempt करने में ज़्यादा interesting है. yes, चलिए, let's proceed to our next question. So this is next question right in front of you here. Which of the following is not a valid Boolean algebra rule? So again rule आपने check करना है, गलत rule कौन सा है ये बताना है. time starts now. Not a valid Boolean algebra rule. एक एक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा अगेन यहाँ पर भी. वैसे तो आई थिंक ये बहुत रैपिडली हो जाएगा. पिंटुष कुमार, जो भी आपको कोर्स रिलेटेड क्वेरी है वो आप जो है पोर्टल पे पोस्ट कर सकते हो, और डीपीपी आपको अगर नहीं मिल रहा वो भी आप ज़रूर पोस्ट करो, बिकॉज डीपीपीज आपके पेपर की हैं. ठीक है. दूसरी बात ये कि अगर आप पेपर जो कंटेंट देखोगे पूरा कंप्यूटर साइंस का, तो वहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो हम लोग कवर करा रहे हैं. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एज अनाउंस्ड अर्लियर कि वो रिकॉर्डेड सेशंस ही रहेंगे. ठीक है. सो जब बैच का ओरिएंटेशन हुआ था, सो इट वाज क्लियरली अनाउंस्ड. अदरवाइज ऑल्सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप जो है उस पोर्टल के ऊपर प्लेस कर सकते हैं. डेफिनेटली द टीम विल हेल्प यू आउट विद योर क्वेरीज. ओके,
चलिए यस, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। चेक कर लेते हैं। एक्स डॉट एक्स अभी मैंने पीछे ही बताया था कि ये तो एक ही बारी लिखना इज ओके है ना। इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स वाई। सो दिस वुड बी वैल्यू, नो बी ऑप्शन कौन कह रहा है कि वैलिड नहीं है? चलिए लेट मी सी। ये तो वैलिड है बिकॉज दिस विल गिव आंसर as x plus xy, correct, where you can take x as common, which is 1 plus y, which is equal to x. So b जो लोग कह रहे हैं उनका आंसर कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं पिंटूश, आपने मेरे नोटिस में डाल दिया। डेफिनेटली इन्फॉर्म द टीम टू लुक इनटू इट, है ना, बिकॉज सारा चीजें वहां पर हैं। आई थिंक आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो ऐप के ऊपर। ओके चलिए, सो x इज द वैल्यू विच इज प्रोड्यूस्ड हियर, सो b ये करेक्ट है बिल्कुल। अब सी ऑप्शन चेक करेंगे। सी ऑप्शन में x कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू y। सी ऑप्शन में कैसे हम, हाउ कैन वी टेक कॉमन इन दिस पार्ट? देयर इज नथिंग कॉमन ना। सी पार्ट के अंदर अगर आप कॉमन निकालते हो तो आप इसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एज लाइक एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई। यही कर सकते हैं ना, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स and x complement plus y, correct, but this is not going to produce answer y. इससे y नहीं आएगा, तो c I think is not valid. Rest of the rules are absolutely valid. Rest of the rules are absolutely valid. ठीक है जी, c is incorrect ना, rest of the options are correct. d में भी बहुत सिंपल है, ब्रैकेट ओपन करोगे d ऑप्शन में तो ये हो जाएगा xx plus xz plus xy plus yz, है ना। So this would be x plus xz plus xy plus yz. You can take common, यहाँ पे x बच जाएगा। Again you can take common, ये बिल्कुल सही आएगी इक्वेशन, x plus yz, absolutely right. So C is the correct answer. It's not the valid rule. कुछ लोगों ने B दे दिया था, but I think जो है अब समझ आ गया होगा मिस्टेक अपनी। C is the right answer, correct. Next question is again, which of the following rule is a correct rule? फटाफट से आप करेक्ट आंसर देना सब लोग, ठीक है। करेक्ट पूछ रही हूँ, अब इनकरेक्ट नहीं पूछ रही हूँ, तो 3 गलत होंगे। आराम से रीड करो। What is the answer for a dot a complement? This is equal to 1. Yes, is a dot a complement equal to 1? No, it's going to be 0, है ना। Incorrect है, क्वेश्चन सिर्फ आपसे करेक्ट पूछ रहा है। ए ऑप्शन जो लोग बोल रहे हैं टाइम अप हो चुका है भाई। एक अब मैंने बोला ना, जब भी कंफ्यूजन हो ना, बूलियन का तो सबसे अच्छा पार्ट ये है कि आप ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, सो देखो, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप ए की वैल्यू 0 1 अज्यूम कर रहे हो। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? दैट इज 1 0। अगर मैं इनका डॉट लूंगी तो इज इट गोइंग टू प्रोड्यूस आंसर 1? नो, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस आंसर 0। तो फर्स्ट के ए से कौन लोग कह रहे हैं कि सही है? तो बहुत बेसिक पार्ट है। हाँ, सेकंड के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप ए को कॉमन ले सकते थे, तो ये हो जाता 1 प्लस बी। 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, सो दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस आंसर ए। तो ये भी गलत है बिकॉज इट्स सेइंग ए प्लस बी, करेक्ट। थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं। थर्ड ऑप्शन पे आई कैन अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो मैं इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ए प्लस बी। व्हाट इज दिस? ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ये रहा, है ना। इसके बीच में अगर मैं प्लस करती और करती इन दोनों का तो आंसर 1 आ जाता। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस 1, है ना। सो ये वाली टर्म आंसर आ जाएगी। सो दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस ए प्लस बी एज एन आंसर विच इज रिटन। दैट मीन्स सी इज करेक्ट ऑप्शन। इसको भी चेक करवा देती हूँ। इसको आप ओपन करोगे तो इट्स गोइंग टू बी ए प्लस ए बी। व्हाट इज ए? दैट इज ए एंड इट इज ए प्लस ए बी। यहाँ पर आप a को कॉमन लोगे, इट वुड बी 1 प्लस b which is going to produce answer a, but here written is b which is again incorrect. So C, no doubt, is the right answer.
3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. कुछ लोगों ने बहुत जल्दी में आई थिंक रिप्लाई किया था, तो जिन्होंने ए किया था आई थिंक यू फाउंड योर मिस्टेक. करेक्ट, गलती पता लग गई. बहुत सिंपल था. इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पेपर्स के अंदर आ रही हैं. ठीक है, ये रिपीट हो गया एक बारी क्वेश्चन. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. In the Boolean algebra, this is the rule which is given here. The rule says x plus y, x plus z. Yes, this is equal to what? Time starts now. You can open the brackets and calculate the answer. हाँ जी, right answer for the question. Right answer for the question is option B, correct. Let's solve. Once you open it, you will get xx plus xz plus xy plus yz. Correct. This is going to produce x plus xz plus xy plus yz. You can take common here x, 1 plus z plus xy plus yz. So ये रह गया x plus xy plus yz. Again इसमें से x common, 1 plus y plus yz. This is going to be x plus yz, which is option number B. So absolutely correct है. देखते हैं how many are right. 90% students are correct here. जिन्होंने B दिया है उन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है. B is absolutely the correct answer for this question. चलिए, next question. In Boolean algebra, if I write 1 plus 1 plus 1 plus 1, है ना, this way, if I write up to 800 times, then it is going to be equal to what? Time starts now. मैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख रही हूं 800 बार. कितनी बार लिख रही हूं? 800 टाइम्स. सो मेरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. एंड द पोल हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड फॉर यू. हाँ जी, यस, राइट आंसर. दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस डेफिनेटली 1 प्रोड्यूस करेगा. जितनी मर्जी बार आप 1 को और कर दो तो वो 1 ही रहेगा ना, है ना. जितनी मर्जी बार आप 800 बार 1 1 1 1 लिख लो, आप उसे प्लस कर रहे हो और कर रहे हो, है ना, और का सिंबल है. तो दैट्स गोइंग टू प्रोड्यूस आंसर 1 विदाउट एनी डाउट. यस, बहुत सिंपल इक्वेशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन. बट कुछ लोगों ने अभी गलत भेजा है. ए ही करेक्ट आंसर है. कुछ लोग सी भेज रहे थे. भाई 1 को कितनी मर्जी बार लिख लो, है ना, कितनी मर्जी बार. ये प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है और का सिंबल. बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बूलियन अलजेब्रा की बात कर रहे हैं. बूलियन अलजेब्रा में प्लस का मतलब क्या होता है? और होता है. करेक्ट. सो अब 1 को आप जितनी मर्जी बार और कर लीजिए, दैट्स गोइंग टू प्रोड्यूस आंसर 1 ओनली. यस, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे. दिस इज ऑल्सो अ very good question which you have to tell me now. The question is, no, it's not addition, it is or. Mansi Agarwal, that's what I said, है ना. It's or, कि आप 1 के साथ 1 को और कर रहे हो. ऐसे ले लो ना,
1 के अंदर है 1 1, 1 के अंदर है 1 1, आप इन दोनों को और करोगे तो इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस 1. सो डज नॉट मैटर आप कितनी मर्जी बार कर लीजिए, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस 1. हियर प्लस का मतलब इज और, बिकॉज इट्स बूलियन अलजेब्रा, राइट. चलिए नेक्स्ट. सो यू हैव टू टेल द मिन टर्म एक्सपेंशन. एक मिनट में ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देती हूँ कि इसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या थी, ये मैं कंप्लीट कर रही हूँ. जस्ट अ सेकेंड. इट इज वैल्यू पी क्यू प्लस क्यू आर कॉम्प्लीमेंट. सो आई एम राइटिंग हियर सेपरेटली पी क्यू प्लस क्यू आर कॉम्प्लीमेंट plus PR complement. This is the equation, right? So there are three variables P, Q and R. You have to write the min term expansion. आपको इसका बताना है कि min term expansion हम कैसे निकालते हैं. ये भी आपका पार्ट है बूलियन में जब हम के मैप को ड्रॉ करते हैं, है ना. सो एक हिंट मैं दे सकती हूँ वो ये कि आप लोग इसका के मैप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए 3 वेरिएबल का. प्लॉट द वैल्यूज, बिकॉज ये इक्वेशन जो है दिस इज गिवन इन मिन टर्म फॉर्म, दैट मीन्स इट्स गिवन इन द एसओपी, है ना. एसओपी के अंदर ये आपको मेंशन है एंड आप देख भी सकते हो कि दिस इज एक्चुअली द एसओपी फॉर्म. सो यू कैन ड्रॉ द के मैप स्ट्रक्चर फॉर 3 वेरिएबल विच कैन बी लाइक दिस. मैं हिंट दे रही हूँ तो सुन लीजिए, जिसको रिकॉल नहीं हो रहा अगर तो माइंड के अंदर आप सुन लीजिए. पी क्यू आर 3 वेरिएबल्स हम ऐसे ही करते हैं ना, एंड हम इसके अंदर 8 स्क्वायर्स ड्रॉ करते हैं एज लाइक दिस. हाँ, सो नाउ यू जस्ट हैव टू प्लॉट द वैल्यूज दीज 3 वैल्यूज इनटू द के मैप टू गेट द मिन टर्म एक्सपेंशन, राइट. सो आई हैव गिवन द बेस्ट हिंट. आप जल्दी से टाइमर स्टार्ट करते हैं, आंसर देखते हैं क्या है. टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑप्शन नंबर ए आ रहा है. अगर हम ड्रॉ करते हैं इसको, okay, poll has been stopped. चलिए let me write here. We know the numbers we have to put, है ना. We have to give numberings, that is 0 1 2 3 4 5 6 and 7. and इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो you know that it is 0 1, which means here P complement P. Here it is 0 0 0 1 1 0 1 1, which means Q complement R complement Q complement R Q R क्यू आर कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ऐसे अब नंबर्स पुट करते हैं. चलो, सो ये पी क्यू कहां पर आएगा, वेयर पी इज 1 एंड क्यू इज ऑल्सो गिवन वेयर वी डू नॉट हैव आर. जहां पे हमारे पास आर ना हो, हमारे पास क्यू हो, है ना. पी एंड क्यू. सो पी एंड क्यू वैल्यू हमारे पास इधर आएगी ना. करेक्ट, पी एंड क्यू, एब्सोल्युटली राइट. दिस इज द प्लेस. here we'll get P and will not get R, will get only Q. so ये आ गया पी क्यू. नेक्स्ट है हमारे पास क्यू आर कॉम्प्लीमेंट. सो पी नहीं आना चाहिए, आप क्यू एंड आर. सो ये आ गई वैल्यू क्यू आर कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों. करेक्ट, ये दोनों. यहां पर आपके पास पी नहीं आएगा, आपके पास सिर्फ क्यू आर कॉम्प्लीमेंट आएगा. ठीक है. एंड तीसरी चीज जो थी वो है पी आर कॉम्प्लीमेंट. सो यू वॉन्ट पी बट यू डू नॉट वॉन्ट क्यू. हमें पी तो चाहिए है बट हमें क्यू नहीं चाहिए. करेक्ट. सो पी आर कॉम्प्लीमेंट विल कम if I put 1 here and if I put 1 here, because out of these two you are going to take R complement but Q and Q complement will cancel out. so ये आ गए आपके पास 3 values. ठीक है. अब ये नंबरिंग क्या है, that is the min term expansion. so this is number 2,
number 4, number 6, number 7, number 2, number 4, number 6, number 7. Numbering बहुत clearly given है. So just you have to use the numbers to get the min-term expansion, which is absolutely option number A. बिल्कुल correct है. A is the right answer. A is the right answer. 83% accuracy. Yes, 83% accuracy. Very good. जिन्होंने reply करा है ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, इसी का एक और देख लेते हैं. एक मिनट, यहाँ पे सर्किट मिसिंग है, मैं सर्किट ड्रॉ करती हूँ. द क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मिन टर्म लिस्ट represents the circuit given above. So what is the circuit? Let me draw here. We have three input variables A, B and C, where B would be with complement and C as it is. इन दोनों का हम लोग गेट लगा रहे हैं, AND गेट, ठीक है. And also whatever the output comes out of them, इनका हम लोग और गेट से कनेक्शन करें. This is the circuit, ठीक. And the question is asking, this is output Z. The question is asking which one of the following min-term list represents the circuit given above. This is the circuit. कौन सी list से represent होगा? That you have to find out. Time starts now. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं हिंट दे रही हूँ, अभी जो इक्वेशन आएगी ना, उसको आप लोग के मैप के अंदर प्लॉट करो. जो भी इक्वेशन आपके पास आ रही है उसको आप के मैप के अंदर प्लॉट करो. What equation we are going to get here? I have not received replies. मुझे 2 ही replies आए हैं अभी तक. पोल स्टॉप हो चुका है. चलिए कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करती हूँ यहाँ पर. सो इक्वेशन आपके पास क्या आ रही है? इक्वेशन में A आ रहा है एज इट इज एंड B कॉम्प्लीमेंट C. दिस इज द इक्वेशन, है ना. A is as it is, B complement C. So you just have to plot this equation into the K map. ये देखो, ये हमारी इक्वेशन बन रही है A, this is B complement, ये AND गेट लगा, so इधर से आ गया B complement C, दोनों को आप और करोगे, so it is going to produce A plus B complement C. This is the equation which is produced. Now we have to draw the K map for this equation, right? And it's a 3 variable K map, so same logic is applicable. You have to draw 8 squares. So this is A, B, C, correct? 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, correct? B complement C complement, B complement C, B, C, B, C complement, correct? A complement and also A. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and also 7. ठीक है जी. चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ डू वी प्लॉट दिस इक्वेशन A प्लस बी कॉम्प्लीमेंट C. सो A कहाँ पर है? यहाँ पर, है ना. A यहाँ पर है, दैट मीन्स ऑल वैल्यूज वुड बी 1. वेयर इज B कॉम्प्लीमेंट C? दिस इज B कॉम्प्लीमेंट C. वी कैन यूज अदर कलर ऑल्सो. सो ये 1 1 1 1 एंड ये दोनों 1. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. अब इसके नंबरिंग क्या है? दैट्स इट, दिस इज द क्वेश्चन. 1 4 5 6 7. 1 4 5 6 7. Option number C, absolutely the right answer. Let's see how many I have given. Replies तो आया ही नहीं था, है ना. लेट आया था रिप्लाई, थोड़ी देर से आया है रिप्लाई. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. जिन्होंने देर से भी समझा, बट एटलीस्ट यू हैव ट्राइड द क्वेश्चन, है ना. C is absolutely the correct answer. Okay, just one last question for the session. I would like to discuss one last question. एक आखिरी क्वेश्चन. चलिए,
सो अभी अगेन मिन टर्म एक्सपेंशन बताना है, बट किसका, मैं इक्वेशन लिख रही हूं. इक्वेशन इज ए बी, sorry, 1 second. Okay, AB plus BC complement plus A complement C. No, उल्टा लिख दिया. It's not A complement C, AC complement. Yes. Okay. So you have to find out the min-term expansion of this. You can do one more thing in this question. एक चीज और कर सकते हैं. मैं पहले बता देती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन में. और हम लोग यहाँ पर मिसिंग टर्म को ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना. एंड वो हम लोग ने एल्जेब्रिक मेथड मिन टर्म के अंदर, जिन्होंने मेरे साथ मिन टर्म पढ़ा है, they have studied the algebraic method, right? So that algebraic method, that it's a 3 variable concept ना. 3 variable equations होने चाहिए थे, but we have only 2 variables, so you can add the missing term, right? Like here we have C, तो आप ऐसे कर सकते हो AB C plus C complement, ये missing था क्योंकि, ठीक है. Similarly we have BC complement, what is missing? That is A, so you will write like A plus A complement, ठीक है. And here AC complement, so missing term B, so B plus B complement. अब आप इस इक्वेशन को ओपन करोगे. जब आप इक्वेशन को ओपन करोगे तो आपके पास आ जाएगा ABC प्लस ABC complement प्लस ABC complement प्लस A complement B C complement प्लस ABC complement प्लस AB complement C complement. Yes. B complement, C complement, right? So what is common, that you have to write just once. जितना भी common portion है उसको हम हटा देंगे, common portion को remove कर देंगे, and हमारे पास uncommon portion जो है वो रह जाएगा. So common portion में क्या आ रहा है? This is common. I have ABC complement, ABC complement, ABC complement, इसको एक ही बारी लिखेंगे तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी ABC प्लस ABC complement प्लस A complement BC complement प्लस AB complement C complement. That's it. So what is this as according to my structure? ये अब आपको जो है find out करना है कि ये structure कहाँ पर है. I have received some of the replies. Okay, I'm giving a timer to participate in the poll. Yes, please. आप ड्रॉ करके देख सकते थे इस तरीके से. 3 वेरिएबल्स हैं अगेन, A and BC, 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1. So where would be ABC? This is ABC numbering 0 1 2 3 4 5 6 and 7. तो नंबर 7 किसके अंदर है? नंबर 7 दो जगहों पे है. No, there's only one place. I think question done है. Option number C, because number 7 के आगे I think कोई और चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं थी. इसका आंसर C आएगा. वैसे आप बाकी वैल्यूज में प्लॉट करके भी चेक कर सकते हो. 100% एक्यूरेसी है, बहुत बढ़िया. C रिप्लाई मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने दिया है, मैं शो भी कर देती हूँ आपको. ये देखो मैंने सॉल्व करा है. M7, M6, M2 and M4. So this is the answer produced. You can put the rest of the values here to get the answer. A, BC complement. Where do we have BC complement? This, है ना, BC complement. Then A complement, BC complement. So A complement, B and C complement would be here. And last part is A, B complement, C complement. So A, B complement, C complement would be here 1. So ये ones हैं आपके पास 2, 4, 6, 7, which is given here 2, 4, 6 and 7. That's it, question done. चलिए, this is all about the session everyone. I hope you liked the session.
I hope you all understood the questions. I hope you all like the session. I will be meeting you in the next lecture on Friday because my schedule is MWF, है ना? Monday, Wednesday, Friday को हम लोग मिलते हैं सुबह 11 बजे. तो अब हम Friday को मिलेंगे for the next discussion. See you all and take very good care of yourself. I know you all are waiting for the results. इस वजह से जो है आजकल calculations में ये पता लगा कि they are very far away from the qualifying number. Generally around the qualifying number जो कि आप पीछे वाले